Hello everyone, am I audible? Hello? Just quickly give me a hands up if you can hear me. Yes, all right. Thank you, Sania. Zubair Saab, how are you? Right. Yes, Ikra. Okay. Yes, Ikra, you want to say something? Okay. You can hear. All right. All right, Fariha, Ghulam Mustafa. Yes, 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 yes. Thank you. Everyone, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. Just a quick refresher that this session is basically about the question answers that the questions I have chosen for this particular session are from the the questions that you have written in your Okay, today we will be discussing the questions that you have written in your forms, and I'll try to cover all the questions. It is around 50 questions that I have selected because there were a lot of questions that were repeating. So I hope you people will have a clear idea of what literature review is, what research is, and how can we go about a comprehensive literature review. There are a lot of questions in here, and obviously, I just want to make it one thing clear that this session is particularly about answering these questions. Since we are having only 1.5 hours meeting today, so hopefully I'll be able to answer your questions. If anybody has any other relevant questions from this workshop, we will have 10 to 15 minutes at the end so that we can cover all those questions as well. So I would like to welcome Zakriye Abdi Fatah from he's the person who have requested me to keep it in English, and I hope everybody would be able to understand. So if anybody has any request that I can switch into Urdu as well, so I'm comfortable with that too. So I hope everybody is able to hear me properly. If anybody has any issues, you can just ask me. Okay, we are okay with it, sir. Thank you, Marvi. Thank you. Thank you, Apsa. All right, great. So I can see there are a lot of people who have not yet joined, but since we are already late to this session, so we will be starting right here. All right, just allow me to share my screen and we'll be done. Okay, you people can see my screen, right? Okay. In this session, we'll be basically answering your questions, and before that, just a quick recap that what research is and how it begins. So research always begins with the understanding of our subject, whatever we are doing research on, to understand that subject particularly before delving deep into studying that particular phenomena. सो सबसे पहले हम जो करेंगे चीज़ वो हम उस टॉपिक को समझेंगे जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं सो फॉर दैट ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू इज़ द फंडामेंटल थिंग और फाउंडेशन which we you know count on because obviously literature is the only thing that provides us the information about the topic so to understand our topic, it is really important to
have a good literature review, right? So after that, once we now there comes a question. There are a lot of questions that how can we find relevant, articles or relevant literature to our topic. So in order to do that, we use Google Scholar. We use ResearchGate. We have multiple other, sources. But one thing that I particularly recommend my students and my supervisees, that is to go on to searching for a literature on Google Scholar and then see the citations of that. For instance, let me share you my web browser and then I will show you how can I do that. So since my purpose of this session is particularly to give you people a kind of starter that you can do research independently as well. So I'll be choosing this here. Now you can see my screen. Anybody? Just give me a heads up. Yes, sir. Alright, thank you. Okay, so सबसे पहले हम जाएंगे Google Scholar पे. Then we write here whatever we have in our mind. For instance, I'm interested in teacher motivation. That what motivates teacher motivation factors. और इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे, motivating factors for teachers. So this is one of the topics that I have just written on Google Scholar. So Google Scholar will give me a lot of researches here, right? So in here we have this scale custom range of years from where we can choose के हमें कब से literature चाहिए, like uh, if we choose since 2021, so it will show me the results that have been published in 2001, 2002, 2003 up to 2005 and current times, right? So that's what we do basically when we are trying to find the literature in particular period of time, the literature that has been published in a particular time, right? Particular period. So in this case, I have chosen it since 2021. So I'm trying to I'll be focusing particularly on the articles that have been published between 2021 and 2025, and these should be according relevant to my topic, which is motivating factors for teachers, right? So once I have that, so this you can see here over here that it shows it this article has a PDF. So the ones which have this kind of PDF link over here, it means we can download these articles. But you will find that some articles would not have this kind of will be missing PDF link, right? So यहाँ पे उसका link नहीं है. You can see in this what prompts promotes teachers turnover intention, based meta analysis, right? So this particular article does not have a PDF. So what we do, we have a couple of resources over here, like one of which is SciHub. हम SciHub पे जाते हैं, राइट? वंस वी आर ओवर हियर, तो यहाँ पे हमारे पास इसका सर्च इंजन खुल जाता है, and then it provides us a lot of things. Like now it says enter URL or DOI number. URL is the URL link which we can find from here. Like इसको मैं न्यू टैब में ओपन करूंगा तो ये उसकी URL लिंक है. एक तो ये उसकी URL लिंक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, राइट? और DOI नंबर है यहाँ पे.
You can find here DOI number. You can copy this DOI number from here, copy link address, and then put it into this and open it. Now, this article is not available, not yet available in this database, right? So यहाँ पे ये database में available नहीं है, तो obviously we don't get it from for free. So this particular if the PDF is not available, it means this journal is paid. So you can get access from your institution as well. यहाँ पे ये लिखा हुआ है access through your organization, which is your university or uh, or any other organization that is affiliated with Elsevier, because it is Elsevier's journal. तो यहाँ से आपको Elsevier की अगर आपके पास एक्सेस है तो that's good. If you do not have any access, uh, then you look for someone, you ask some people to give you. But before that, अगर ये मेरे काम का भी है या नहीं, इसको मेरे समझने के लिए मैं इसका क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ूंगा, right? Whatever article we find which is relevant according to the title, then we go for the abstract. Once we find the article title is relevant, then we read the abstract. And abstract actually provides us the data that whether this is particularly relevant or it is just not relevant to my topic, right? So यहाँ से फिर हम उसको abstract को पढ़ते हैं, and if it is you know relevant तो हम इसको डाउनलोड करते हैं. If it is providing free link, अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा तो then we go to वी आस्क सम पीपल. या तो हम पहले साई हब पे जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा तो वेल डन. अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा तो देन वी विल बी गोइंग समवेयर, वी विल बी आस्किंग सम पीपल हु हैव एक्सेस, राइट? और सो आई होप दिस इज काइंड ऑफ फाइंडिंग तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि हम कहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं. नाउ इट इज ऑर्गेनाइजिंग, ये हम इसको लेटर पार्ट में देखते हैं कि हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सिंथेसाइज कर सकते हैं लिटरेचर. तो these two things will be discussed later is in while answering your questions, right? So let's just get directly into the questions. So, first question was, what is research and why is research important for our future? So, research is basically a systematic way of, studying something or systematic way of investigating some phenomena. That's basically the meaning of research, right? We we apply systematic process, we follow systematic process to gain knowledge about something. That's what we call research, right? And why research is important for our future? Obviously, research is important in many ways and in many disciplines. For particularly, uh, आपको uh, आपका जब as an scholar you want to pursue your career, whether you are researcher or you are professor or you are lecturer or you want to go for higher studies. So your understanding of something is basically judged by your articles published about that particular phenomena. जैसे टीचर्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग या टीचिंग के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त उस चीज से असेस की जाती है या जज की जाती है कि आपके कितने उस चीज के ऊपर पेपर्स पब्लिश्ड हैं, right? So that's the basic criteria for judging a person, that how much research that person has done. Obviously you might have done a lot of research but you have not published papers, so you cannot claim that you have a knowledge of that particular phenomena. So publishing papers is very important for your for having the credibility as a researcher or as a knowledgeable person, right? So research also gives you the opportunity to disseminate your research in conferences. That's when you get
टू इंटरेक्ट पीपल, और फिर आप उनको जा करके verbally बताते हो कि that I know about this particular phenomena, right? So that's again the way of, developing your own credibility. That's why research is important. You also, this one was this one kind of way of presenting yourself about presenting the claim that you have a knowledge, is that you publish the articles. The other is going into conferences and uh, telling people. So presentation ke, then we have different types. Then this is parallel presentation, or PowerPoint presentations. Then we have poster presentations, and we have model presentations as well, right? So there are multiple ways that we can, disseminate or present our research in different conferences, right? What is a research paper? Obviously, research paper क्या है? Research paper is basically the summary of your understanding of a particular phenomena while studying it. So you studied some phenomena. You you might have done an experiment for something. Okay, for instance, you are trying to study the teaching, a particular teaching strategy, whether it is effective or not. So you do the experiment. Now you have that information. You have this knowledge that this particular strategy is, effective or not. But how can you present it to different other people, or how you can, you know uh, tell this information or give this information to other people, is through the research papers. A research paper is particularly, it is a form of, research writing, where you summarize your understanding of some particular phenomena. In our case, it was a particular teaching strategy and its effect. So उसके बारे में आप रिसर्च पेपर लिखते हो, तो रिसर्च पेपर इज बेसिकली अ शॉर्ट वर्जन ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट। समझ रहे हैं? रिसर्च रिपोर्ट का एक शॉर्ट वर्जन होता है। दीज रिसर्च पेपर्स कैन बी ऑफ 5 to 25 or 30 pages, but 30 pages are way too much for a research paper. So usually it is about 5 to 25 or 20 pages, right? Including अपने references as well, right? So that's the research paper. What is literature review? Literature review क्या है basically? So literature review is basically is a part of research, or step in the research, or phase in the research, when before conducting particular experiment, or particular, or measuring or investigating particular variables, you try to understand that particular subject, जो जो भी आपका टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हो? यू रीड आउट different research art papers for understanding, for your own understanding. And then when you are trying to, you know uh, um, you trying to write about that particular subject or that particular topic, तो आप उसके बारे में क्या करते हो? You provide, यू गिव अ क्लेम फॉर इंस्टेंस ना। सो उस क्लेम को आपने वैलिडेट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर आर्टिकल का की इंफॉर्मेशन देते हो, कि ये आपको इंफॉर्मेशन तो है, बट हम कैसे माने कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? सो यू गिव द रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर, यू यू गिव द रेफरेंस, कि ये रेफरेंस है, इस आर्टिकल ने बताया है कि ये पर्टिकुलर चीज इस तरह से होती है। सो दैट्स द लिटरेचर रिव्यू, कि आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते हैं, और उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उस अंडरस्टैंडिंग को जब आप प्रेजेंट करते हो अपने रिसर्च पेपर में, तो फिर आप उसके साथ रेफरेंस दे सकते होते हो, कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, राइट? सो दैट्स पर्टिकुलरली लिटरेचर रिव्यू, यानी रिव्यूइंग लिटरेचर, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स और बुक्स और आर्टिकल्स, और उसके बेसिस पे आप अपनी
प्रेजेंट करते हो एक रिव्यू को। रिव्यू इज बेसिकली कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग, राइट? देन द क्वेश्चन 4 इज why literature review is important in research. One of the questions that a lot of students have recently asked me in person as well, कि सर हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, हमारे हमारे रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है? सो दिस क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू इज इम्पोर्टेंट इन अ वे, it actually gives you the authenticity or validity or reliability to your paper, कि आप कितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी ज़्यादा रेफरेंसेस आप उसमें ऐड करोगे अपने पेपर में, दैट इज़ ऑब्वियसली इन लिटरेचर रिव्यू पार्ट, तो उसमें ये होता ये है कि उतनी ज़्यादा आप क्लेम कर सकते हो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राइट? और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एक टॉपिक के ऊपर होगी, उतना ज़्यादा आपकी रिसर्च वैलिड होगी, उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च रिलायबल होगी, राइट? सो दैट्स व्हाई लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च. I hope it is clear. And if I'm going too fast, so just give me um, हैंड्स अप कि सर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो करें, और इफ़ इट इज़ ओके तो जस्ट गिव मी. We basically write summary of entire article. No, it is not just one article, rather it is set of articles की हम summary करते हैं literature review में. I hope नादिया, नायाब, you're clear कि हम लिटरेचर रिव्यू में ओके. ओके, ग्रेट. सो हम बहुत सारे जितने अवेलेबल लिटरेचर आर्टिकल्स होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, हम उन सबको पढ़ेंगे एंड उनकी समरी जब प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, राइट? ओके. तो मैं काफ़ी तेज तो नहीं जा रहा. इफ एनीबडी थिंक्स दैट आई एम गोइंग टू फास्ट, सो जस्ट गिव मी अ हेड्स अप. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सानिया, थैंक यू. ओके. why we why do we do a literature review before starting any research? Sir, we have a different questions also related to literature review. Okay, Shana, we will have 15 minutes at the end of this session, so you can ask questions. You can write your questions meanwhile on some paper or somewhere, so you can easily ask them, right? I have a lot of questions. Okay, okay, no worries. We will answer. We will try to answer all the questions, inshallah, as much as we can do, right? Okay. Then just give me a moment. Okay. All right. Why do we do a research literature review before starting any research? Why is it compulsory? As I told you earlier, literature review basically provides the credibility of your research, credibility of the knowledge that you already have of your topic. तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कितनी नॉलेज है, वो आपको लिटरेचर रिव्यू बताता है. और दूसरी बात, जो जो दूसरी चीज़ जिसके लिए ये लिटरेचर रिव्यू इम्पोर्टेंट होता है, दैट्स समथिंग कि आप लिटरेचर रिव्यू से ये भी पता चलता है कि रिसर्च गैप, वेदर बाय टॉपिक, विच टॉपिक आई एम स्टडिंग is already been researched or studied or not. तो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू से आपको जो चीज़ बेसिकली पता चलती है, दैट इज रिसर्च गैप, कि कहाँ पे रिसर्च गैप है, मैं कहाँ पे रिसर्च कर सकता हूँ, किस डोमेन में ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक मैं रिसर्च कर सकता हूँ. सो दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक इट कंपलसरी. कि अगर आपने लिटरेचर रिव्यू किया ही नहीं तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रिसर्च गैप है और यहाँ पे मैं रिसर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो वो चीज आपको पता चलती है ओनली थ्रू लिटरेचर. क्लियर? तो ये आपको चीज पता चलती है ओनली थ्रू लिटरेचर, राइट? देन and this is the reason that it is literature review is compulsory before doing research, right? Then we have a question: what is meant by literature review, and when should it be written in the research paper? अच्छा, research paper के अंदर basically
there are different criteria of different journals और according to their criteria obviously जिस भी जर्नल में आप पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं in that particular research paper but usually it comes after your introduction to your topic. So that is again something different that is not the scope of this particular सेशन के कैसे हम राइट करते हैं सो एक किसी भी रिसर्च पेपर को लिखते कैसे हैं दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन सो वी कैन डिस्कस दैट इन आवर कमिंग सेशंस मे बी clear. So then, what is research review and why do we study it? Again, research review is literature review. Literature review को हम क्यों करते हैं? That अभी already have discussed कि literature review से एक तो हमें गैप पता चलता है, दूसरा हमारी credibility develop होती है और तीसरा हमें knowledge आती है. Knowledge से credibility बनती है और नॉलेज से क्रेडिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज मिसिंग है उसको फाइंड कर सकते होते हैं एंड दैट इज एक्चुअली द रिसर्च गैप कि हम इस चीज को मजीद स्टडी कर सकते हैं फिर हम अपनी रिसर्च पेपर के अंदर या रिसर्च के अंदर उस चीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं उस चीज को फाइंड आउट करते हैं या स्टडी करते हैं राइट so that's why we do literature review, right? What types of literature exist? Primary and secondary literature. Okay, there are two type. There are although there are multiple types of literature. Obviously, there are research papers. There are research. एक तो रिसर्च पेपर होते हैं जो जर्नल पेपर या जर्नल आर्टिकल बोलते हैं उसको हम दूसरा हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जो वेब ब्लॉग्स होते हैं वो होते हैं हमारा लिटरेचर दूसरा हमारे पास बुक्स होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वो होते हैं उसके अलावा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ लिटरेचर एज वेल और प्राइमरी लिटरेचर इज समथिंग it is basically about the question probably is not phrased in a particular way. It is not primary and secondary literature, rather it is primary and secondary data. So primary data is the data that we collect by ourselves. कि मैं कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ फॉर इंस्टेंस जो मैंने अभी टॉपिक लिखा था टीचर्स को क्या फैक्टर्स हैं जो टीचर्स को मोटिवेट करते हैं टू कंटिन्यू देयर जॉब तो उसके लिए मैं डायरेक्ट टीचर से जब इंफॉर्मेशन लूंगा so that will be called my primary data एंड अगर मैं किसी और की हुई रिसर्च या किसी और क्या कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करूंगा तो दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी डेटा क्लियर तो that's the difference between primary and secondary data it is not literature it is rather data right देन व्हाट टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर यूज्ड इन लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज मैंने अभी आपको बताया कि आप रिसर्च आर्टिकल्स यूज कर सकते हो एज अ सोर्स आप बुक्स यूज कर सकते हो एज अ सोर्स आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यूज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो यूज web blogs as well and there are other videos you can also use as a source of literature review as well then we have what sources of literature review? What are the sources of literature review? Again, that question is repeating. So I hope these questions are clear so far. If anybody is confused in the answer of these 10 questions, you just give me a heads up. I hope it is clear. Anyone? Just write a message or something. Okay, in article literature review, heading is not included. So where we write those? ओके इन यूजुअली हम लिटरेचर रिव्यू को जो है ना जो हमारी आर्टिकल्स के अंदर आपको लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग नहीं मिलती यस नहीं मिलती समटाइम्स बिकॉज वी इनकॉर्पोरेट दैट इनटू सम अदर हेडिंग अब लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग देना इज डजेंट मीन कि आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो लाजमी है कि उसकी लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग भी दोगे सब हेडिंग्स जो आपके पेपर की होती हैं उसके अंदर भी आप लिटरेचर रिव्यू को इनकॉर्पोरेट करते हो जैसे जस्ट गिव मी ए मिनट तो मैं इसको एक पेपर को डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ
डिस्टर्ब हो रहे? Okay, take your time. Is prime thing, or we are supposed to follow this for all our vendors, because we are also paying late fee charges for Ingram and TD Snakes, and I thought a few invoices we paid for Katia as well. So do we need to pay those late fee charges, or we are supposed to take them? Okay, guys. I think my screen is visible. And besides, I would like to apologize for the background noise. If you people hear some noises in my background, so one of my cousins is actually in meeting as well. He's online and he's working as well. So probably that's him that you can hear off. ओके सो इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है यहाँ पे इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग दी हुई है बट डायरेक्टली लिटरेचर रिव्यू के अंडर कुछ नहीं लिखा हुआ राधा टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन चाइना एक सब टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू का ठीक है तो ये आपको टॉपिक सब टॉपिक है और इसके अंदर आपको ये आर्टिकल मिल रहा है ये आर्टिकल मिल रहा है ये आर्टिकल एंड ये आर्टिकल ये आपको साइटेशंस मिल रहे हैं कि इस बंदे ने ये पेपर्स पढ़े हैं और इन पेपर्स में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी right? So it is not all the time necessary that you mention literature review, right, in paper, but obviously again it depends on the journal, कि which journal you are writing to or which journal you are publishing your paper in, कि उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लिखते हो ये मैंने पहले भी बात बताई कि लिटरेचर रिव्यू कहाँ पे जब आपका क्वेश्चन था कि कहाँ पे हम मेंशन करें तो ये है कि Sir, यस हेलो sir, what is the yes, I am audible, sir. yes you are audible. Sir, what is the difference between a literature review and previous studies? Since both sections are included in a research paper. I didn't get your question. Can you write it, please? Because आपकी वॉइस इतनी क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से. Oh, okay. Thank you. Thank you. So literature review की ये वाली heading to literature review देना is not necessary all the times, but obviously again it depends the on the journal that you are publishing your paper in, right? उसके बेसिस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेंशन करोगे या नहीं करोगे बट ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू के डायरेक्ट अंडर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप नहीं लिखते हो क्योंकि आपने कुछ ना कुछ हेडिंग देनी है जिसके अकॉर्डिंग आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई सेट ऑफ पैराग्राफ्स लिख रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे यहाँ पे ये टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड चाइना के रिलेटेड है ठीक हो गया जी ओके आई थिंक समवन वुड हैव रिटन देयर क्वेश्चन तो ये क्या था Okay, Sania says, Sir, what is the difference between literature review and previous studies? Previous studies and literature review. Previous studies are studies. जब तक उनको पढ़ेंगे नहीं तो वो रिव्यू नहीं कहलाएगा रिव्यू इज द रिटन सिंथेसिस ऑफ योर लिटरेचर जो प्रीवियस स्टडीज हैं उनका जो हम उनको स्टडी करके अंडरस्टैंड करके फिर उनसे जो अंडरस्टैंड करते हैं वो जब हम लिखते हैं तो उसको रिव्यू कहते हैं so review is, the understanding of previous studies, written understanding of previous studies in other ways, right? Romesa says if we will publish an article in a journal that is now part of HEC, but for some time if it will be out of HEC category or clauses will our published article count. Yes, obviously your paper will count, but again it depends on द HEC क्राइटेरिया के HEC का जो क्राइटेरिया होता है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेन यू नो सर्टेन फैक्टर्स उसमें सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे किसी भी आर्टिकल को या किसी भी जर्नल को HEC अपनी कैटेगराइजेशन में एक्सेप्ट करता है अगर एक पर्टिकुलर जर्नल एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करेगा तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएगा तो एवरी कैटेगरी है जैसे वाई होता है एक्स होता है और क्या कहते हैं डब्ल्यू कैटेगरी वाई कैटेगरी एंड एक्स कैटेगरी होता है राइट एंड देयर इज दिस
जी कैटेगरी विच इज़ नॉट काउंटेड, क्योंकि एचईसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, राइट। तो एचईसी रिकॉग्नाइज करता है वाई को, एक्स को एंड डब्ल्यू को। तो वाई इज द जर्नल, वो सबसे कम वैल्यूएबल जर्नल्स होते हैं, ठीक है, वो वाई कैटेगरी में होते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं एक्स कैटेगरी के, जो कि कंपैरेटिव टू वाई थोड़े ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। देन हाईएस्ट वैल्यूएबल जर्नल्स होते हैं, जो वो उनको हम डब्ल्यू कैटेगरी कहते हैं। अब ऑब्वियसली द नेचर ऑफ रिसर्च पेपर से ही डिसाइड होता है कि कितना एक रिसर्च पेपर क्वालिटी वाला है, तो वो एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा। तो यू ट्राई टू एम फॉर डब्ल्यू कैटेगरी, कि आप अपना पेपर डब्ल्यू कैटेगरी में पब्लिश करें। बट फॉर दैट यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी एज अ रिसर्चर, कि आपको बस किसी भी टॉपिक के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू से बनती है, कि आपकी अंडरस्ट आप किसी को क्या बताओगे, कि मुझे क्या पता है, जो भी बताओगे तो आपको पता, आपसे पूछेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लिंग्विस्टिक्स के बारे में क्या पता है, तो यू जस्ट गिव मी सम डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग। बट इफ आई काउंटर दैट योर दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो आप उसको कैसे डिफेंड करोगे? सो यू विल डिफेंड इट थ्रू दी रेफरेंस, कि मैंने ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये यहाँ पे इस आर्टिकल के, फॉर इंस्टेंस नोम चॉम्स्की की पढ़ी थी, नोम चॉम्स्की ने डिफाइन ऐसे किया है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो नाउ योर claim is more credible, right? Because you are giving the reference कि आपने कहाँ से पढ़ी है, right? So that's what literature review is important, and that's the impact of literature review, and that creates your credibility as a researcher, right? तो जितना ज़्यादा आपका रिसर्च पेपर क्रेडिबल होगा, उतना ज़्यादा आप जो है उसके अंदर जो है वो अच्छी कैटेगरी के अंदर आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, आई होप। Then let's come to question number 11. What databases can students access for literature review? Uh, हर जर्नल और देर आर डिफरेंट पब्लिकेशन हाउसेस, जैसे साइंस डायरेक्ट का ये जो पेपर था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला, ये साइंस डायरेक्ट जो है, ये एक्चुअली पब्लिकेशन हाउस है, राइट। इस पब्लिकेशन हाउस के डिफरेंट फिर सब पब्लिकेशन हाउसेज हैं, जैसे जिसके अंदर एल्सवियर एक पब्लिशिंग सब पब्लिकेशन पब्लिशिंग हाउस है। इस एल्सवियर के अंदर ये एक जर्नल है, एजुकेशनल रिसर्च रिव्यू। तो ये एक जर्नल है, ये सब पब्लिशर है, और इसका पेरेंट पब्लिशर है ये साइंस डायरेक्ट। ठीक हो गया। तो ये एक इसकी एक्चुअली डिफरेंट सब होंगे, और इस सब के अंदर डिफरेंट जर्नल्स होंगे, फिर इन जर्नल्स की डिफरेंट कैटेगराइजेशन होगी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की, कि एचईसी डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर उनको वो करता है, राइट, कैटेगराइज करता है कि कौन सा जर्नल किस कैटेगरी में जाएगा। तो ये जर्नल जाएगा जिस कैटेगरी में, वो कैटेगरी ये जर्नल की रिसर्च डिक्लेयर करेगी या डिसाइड करेगी। A quantity quality of this particular research paper will decide the quality of this journal, right? Obviously this is not the only research article that this journal publishes. Obviously 5 से 10 journals के articles होते हैं एक रिव्यू के अंदर, सॉरी एक वॉल्यूम के अंदर। जैसे यहाँ पे आपको वॉल्यूम 36 मिल रहा है, ठीक है, और इस वॉल्यूम 36 के अंदर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है? तो एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, या आप अगर एनजीओ में हैं तो उसने एक्सेस लिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा आपको ये जो मैंने साइंस डायरेक्ट बताया, ये एक वेबसाइट है जिससे आप डिफरेंट आर्टिकल्स फ्री ऑफ कास्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगेन दैट डिपेंड्स कि इन्होंने इस आर्टिकल को लेकर के अपलोड किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो ज़ाहिर आपको नहीं मिलेगा। जैसे इन दिस केस हमें ये आर्टिकल नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे ये बता रहा है कि कितनी हमारे पास
ये अपनी बता रहा है बात कि साइंस हब हैज बीन ब्लॉक्ड इन इंडिया। इंडिया में क्यों ब्लॉक हुआ है, एंड ऑब्वियसली, खैर दैट्स समथिंग डिफरेंट। सो साइंस हब क्या है बेसिकली? साई हब इज फ्री प्लेटफॉर्म जो कि रिसर्च आर्टिकल्स को पायरेट करके यहाँ पे अपलोड करते हैं। यानी किसी ने आर्टिकल को परचेज किया यहाँ से, परचेज करके उसको इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। ठीक है। इस, वो होते इसके एडमिन्स ही हैं, इस वेबसाइट के एडमिन्स ही होते हैं जो कि पब्लिश करते हैं। ठीक है। तो इसको पब्लिश कर दिया, और जब भी मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा, अगर ये डाउनलोडेड होके यहाँ पे अपलोड हुआ हुआ है। अगर नहीं हुआ हुआ तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट फाइंड दैट। तो दूसरा तरीका है, मैंने आपको बताया कि लीगल वे ये है, ये इलीगल वे है बाय द वे। साइंस साई हब वाला इलीगल वे है, बिकॉज हर कोई जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश करता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, आपको पता है। और वो सर्टेन अमाउंट एक्चुअली रिकवर होता है जर्नल्स का थ्रू दिस परचेज ऑफ दैट पीडीएफ। ठीक है जी। या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई होती है तो उनको वो जर्नल्स फ्री में मिलते हैं, मतलब उनकी फीस में मिलते हैं, फिर वो अपने प्रोफेसर्स को, एम्प्लॉयज को और स्टूडेंट्स को वो फ्री में देते हैं। राइट। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। दैट्स दैट। Sir, sir, हम्म। sir, how many literature review articles should be included in a research paper at most? Again, this is good question. This question I think has already been asked in this kind of जो questions मैंने लिखे हैं, but इसको मैं इस तरह से आंसर करूंगा कि जितने ज़्यादा आपके रेलेवेंट पेपर्स साइट करोगे उतना ज़्यादा क्रेडिबल होगा। तो क्रेडिबिलिटी है आपकी 10 पेपर, 15 पेपर, 20 पेपर, नंबर कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स होने चाहिए लिटरेचर रिव्यू में। बट मैक्सिमम नंबर जितना आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टाइम लिमिट्स, वी हैव रिसोर्स लिमिट्स। अब जैसे ये आर्टिकल हमें नहीं मिल रहा तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको पूरा पढ़ ही नहीं पा रहे। राइट। तो जब जब हम पूरा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो हम उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ले पा रहे, तो हम इस आर्टिकल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो हमें फ्री अवेलेबल आर्टिकल्स मिलेंगे एज ए स्टूडेंट, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू आर बैचलर्स स्टूडेंट्स, तो उसको आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे अपने पेपर के अंदर। ठीक है, जितने पॉसिबल हो सके। अब देर इज नो लिमिट कि यहाँ पे इतने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, बट मैक्सिमम। सो यू ट्राई योर बेस्ट टू गेट maximum number of research papers related to your topic so that you can gain that gain that credibility that a researcher requires, right? तो ये है। आई होप इट इज क्लियर Sir, नाउ। sir, यस। yes, sir, clear. Thank you. यस। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मेरा सलाम। ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज के साथ है। 7th सेमेस्टर में हूँ, बैचलर में हूँ। हम्म। सर मेरा जो रिसर्च में है वो इबोला वायरस वैक्सीन प्रोडक्शन पे है। तो सर अक्सर आर्टिकल जो मैं भी लिटरेचर रिव्यू करूँ तो अक्सर आर्टिकल का डीओआई नंबर भी नहीं होता। जब मैं साहिब में तो वहाँ पे भी डीओआई नंबर आपको मेंशन करना पड़ता है या फिर हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सर डीओआई नंबर हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आर्टिकल में मेंशन ना हो? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी भी आर्टिकल को सर्च करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, तो ये DOI नंबर इसका मुझे मिल गया। अब जिस आर्टिकल का अच्छा, आर्टिकल्स की क्रेडिबिलिटी भी एक क्वेश्चन है ना, कि हम कैसे पता चले कि ये मैं इस रिसर्च आर्टिकल को अपनी रिसर्च में ऐड करूँ भी कि नहीं करूँ? दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। वो एक्चुअली DOI नंबर जिस आर्टिकल का होता है ना, वो बेसिकली डिटरमिन करता है कि आपका आर्टिकल जो जर्नल है, जो भी जर्नल है, और जर्नल का DOI नंबर होता है, और जर्नल में जब पेपर पब्लिश होता है तो उसका फिर कंसिक्वेंटली सीक्वेंस में आ जाते हैं इसके DOI नंबर्स भी। ठीक है। तो DO रजिस्टर्ड होगा सर, अफिलिएशन हो, रजिस्टर्ड होगा जर्नल DOI में, तो फिर आपको उस जर्नल का DOI नंबर भी मिलेगा, उसके अंदर आर्टिकल्स का भी DOI नंबर मिलेगा। अगर वो DOI में रजिस्टर्ड नहीं है जर्नल, आई थिंक समवन इज ट्राइंग टू ask question, but I'll just Zachary, please give me a moment.
I just complete this answer and I'll take your question. Okay, so जिस जिस भी जर्नल का या आर्टिकल का डीओआई होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा रिलायबल जर्नल होगा, ज़्यादा रिलायबल आर्टिकल हो। अगर डीओआई नंबर नहीं है किसी आर्टिकल का या किसी जर्नल का, दैट कैन बी द केस, तो वो फिर उतना क्रेडिबल जर्नल नहीं है। So we avoid such articles to, incorporate into our research, right? Clear हुआ? जी सर। जी सर। सर एक और प्रॉब्लम भी है। सर मैंने काफ़ी ज़्यादा पेपर्स देख लिए और मतलब मेरा जो टॉपिक है ना वो वैक्सीन प्रोडक्शन पे है। और मैंने हम्म। काफ़ी पेपर्स देख लिए लेकिन मैं काफ़ी स्कैटर्ड हो गई हूँ। मैं अपना गैप फाइंड नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने वो किस तरीके से कौन सा वे आउट करना है। वो रिसर्च गैप को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा मैं पेपर्स पढ़ लिए लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और वो काफ़ी स्कैटर्ड हो गए मुझसे। और सारा इन्फॉर्मेशन भी स्कैटर्ड हो गया और मेरा गैप फाइंड नहीं हो रहा। Great, 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 great. That's what happens. Particular, to everybody in this session, जो भी है at certain moment in their life, or probably they might be most of them would be facing this same issue right now if they are doing research. तो ये सबसे बड़ी problem होती है कि we have a lot of research papers, और उन रिसर्च पेपर्स में से हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, रिसर्च गैप कैसे फाइंड करें। और वी आर बेसिकली जम्बल्ड कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, पर इस इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें। सो दैट्स वन ऑफ द हेडेक्स ऑफ आर our life when we are writing a research paper और thesis जब हम particularly कर रहे होते हैं, और वो भी basically बैचलर्स के अंदर जब आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता रिसर्च का, राइट? तो इसके लिए अच्छा शाना, आई हैव अ क्वेश्चन। हमारा एक और सेशन है विच इज़ बेसिकली अबाउट लिटरेचर रिव्यू, के उसको करें कैसे, उसकी डेटा कैसे, रिसर्च स्ट्रेटजीज कौन सी अप्लाई करें उसके अंदर, फाइंड कौन से आर्टिकल्स को हमें पढ़ना चाहिए, कौन से आर्टिकल्स को पढ़ना नहीं चाहिए, कौन से आर्टिकल्स को स्किप करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ना हमारा एक और सेशन है, वर्कशॉप है। मैंने आई होप आप सबके पास लिंक होगा, बट दैट इज़ ऑल्सो इन आर व्हाट्सएप चैनल एज वेल, उसका लिंक है, आप उसमें काइंडली रजिस्टर कीजिएगा। आई वुड सजेस्ट यू एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी इन दिस सेशन कि इसके अंदर जब हम अभी तो ज़ाहिर है मैं आपके जस्ट क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलरली स्ट्रेटजीज बताऊंगा प्रैक्टिकली, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सर्च करके दिखाया आपको। तो इसी तरीके से मैं आपको एक एक चीज के ऊपर, फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन तो सिंथेसाइजिंग योर डेटा। अब आपने लिटरेचर, जैसे आपने कहा कि अब मेरे पास बहुत सारे लिटर आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इनमें से डेटा कौन सा लूं कौन सा छोड़ूं। हर चीज़ मैं जब पढ़ती हूं तो मुझे लगता है कि इसको मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मुझे करना चाहिए, बट मैं सारी चीज़ भी ऐड कर नहीं सकती, ओब्वियसली प्लेजरिज्म का इशू हो जाता है। So a lot of things are which we cannot cover in this session। अब देखें जैसे हमारे पास ये 1.5 घंटे का सेशन था ऑलमोस्ट, 1 घंटा होने वाला है, एंड वी हैव जस्ट कवर्ड 10 क्वेश्चंस। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे करना पड़ रही है, राइट? तो हम उस वो जो है, एक तो वो 3 दिन का है, 2-2 घंटे का सेशन है हर दिन में, ठीक है? उसका टाइम भी मेरे ख्याल से मुझे रीस्केड्यूल करना पड़ेगा, because I feel के a lot of people are free at the night, at night, तो फिर obviously उसको हम टाइम रीस्केड्यूल करेंगे 8 to 10 और 7 to 9 में भी, तो उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड encourage you people to join that session। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, और मैं दोबारा से भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको रजिस्टर करें। उसके अंदर आपको फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू सिंथेसिस ऑफ योर डेटा, सिंथेसिस क्या होती है? सिंथेसिस ये होती है जब आप किसी भी लिटरेचर, किसी भी आर्टिकल के ऊपर लिटरेचर को पढ़ते हो तो उसको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर वे में लिखते कैसे हो,
दैट्स द सिंथेसिस। जैसे यहाँ पे ये है, ये लिखा हुआ है, राइट? ये एक बेसिकली द सिंथेसिस है लिटरेचर की। मैंने इस पर्टिकुलर बंदे ने ये सारे आर्टिकल्स पढ़े, और इसने फिर डिसाइड किया कि मैंने कौन सा आर्टिकल कहाँ पे जब जो है वो प्लेस करना है। ठीक है, तो दैट्स द सिंथेसिस। यस शाना, यू हैव अनदर क्वेश्चन? जस्ट क्विकली सर दिस सर क्वेश्चन उस एंड देन। सर उस सेशन को हम कैसे ले सकते हैं? मतलब सर मैंने अभी बिगनर हूँ, मैंने रिसर्च की तो आई थिंक मेरा 2 महीने हो गया। लेकिन जब भी मैं लिटरेचर व्यू को देखती हूँ, बहुत ज़्यादा एक टैब मेरे पास, मेरा सारा लैपटॉप भर जाता है। लेकिन एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और काफ़ी स्कैटर्ड हो जाती हूँ मैं। और जब मैं टाइम को देखती हूँ, मेरा टाइम ज़ाया हो जाता है, पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो सब कुछ अभी रैप अप कर लिया, इसलिए ये सेशन लिया हुआ है। Great, great. I really, really appreciate that you come here. And I would suggest you to register। वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन लिंक है उसकी। ठीक है, उसके अंदर रजिस्टर करें। एंड ऑब्वियसली देयर इज दिस लिटिल फी, इट इज 999। दैट वाज 999 बिफोर 20th। अब उसकी 2000 फीस थी। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा कि आप किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू अ सॉफ्टवेयर विच विल हेल्प यू इन साइटेशन एंड रेफरेंसेस। यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो साइटेशंस दी हुई हैं, ये ब्लू में है। आप इस पे क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर साइट। 2006 वाली ये है। ठीक है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ अगेन लिटरेचर रिव्यू में। यहाँ पे ये देखें, हनुशेक एंड रिवकिन। हनुशेक एंड रिवकिन की ये रिसर्च है, और ये 2006 में पब्लिश हुई है। अब यहाँ पे 2006 ब्लू है, यानी हाइपर लिंक्ड है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इट विल टेक मी टू दैट पर्टिकुलर रेफरेंस। ये ऊपर ऊपर ये वाला रेफरेंस है। ठीक है, ये वाला रेफरेंस मुझे मिला है वहां से। ठीक है, अब ये कैसे आती है हाइपर लिंक? इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली। एंड नोट होता है एक एक, मेंडले होता है, और जोरेटो होता है। तो देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, बट जो इजी टू यूज है और जो मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, वो है मेंडले। और मेंडले का मैं आप लोग के साथ सेटअप भी शेयर करूंगा। उसके अंदर आप उसको इंस्टॉल करेंगे एंड इट विल हेल्प यू। फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइज भी आप कर सकते हो खुद ही। साइट करना भी उससे बहुत सिंपल है। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मेंडले को यूज़ कैसे करना है अपनी साइटेशन मैनेजमेंट के लिए और रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो दैट इज अगेन दिस aid for you people as well, since you people have joined this workshop, ये वाला सेमिनार आपने ज्वाइन किया है, तो I'll again give you people 50% off, and then you can pay just 999 to join that particular session। और उस सेशन के अंदर आपको रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए, अब आर्टिकल्स को स्टडी कैसे करना है, उसके अंदर आर्टिकल्स की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें याद रखनी है या हमें चाहिए होती हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए, वो उसके लिए एक पैटर्न होता है, वो आपको ओबियसली मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। और ये मेंडले की मैंने बात की आपके साथ कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और प्रैक्टिकली कैसे टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, रिसर्च कैसे फाइंड, रिसर्च गैप जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे फाइंड करूं, उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप्स बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स क्या कौन कौन से टाइप्स के गैप्स होते हैं। और उन हर पर्टिकुलर, यानी एक गैप टाइप है तो क्या हम एक रिसर्च के अंदर मल्टीपल टाइप्स के गैप्स को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज बट डिटेल्ड वर्कशॉप। 3 दिन का डिटेल्ड वर्कशॉप है। उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है। मैंने कंटेंट लिस्ट भी आपके साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप उनके कंटेंट्स पढ़ें। इफ़ यू फाइंड के दैट इन दैट टॉपिक दैट वर्कशॉप इज हेल्पफुल फॉर यू पीपल, तो यू पीपल आर वेलकम टू ज्वाइन इट। और इनशाला ये 2 दिन रहते हैं, लाइक इट्स 23rd टुडे, तो 24 एंड 25 हमारे पास 2 दिन हैं इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। ओबियसली देन वी विल हैव टू अरेंज फॉर यू नो
आप लोग के ग्रुप्स बनेंगे और फिर इनविटेशंस एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो वो करेंगे। तो इसलिए 25 को हम उसकी रजिस्ट्रेशन एंड करेंगे, एंड 29 को वो मंडे से हमारा वो सेशन स्टार्ट होगा इवनिंग में, इंशाल्लाह। एंड दैट पर्टिकुलर workshop will be very 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 helpful for you people, inshallah. I'm very confident in that कि आपका वो जो पर्टिकुलर वर्कशॉप है लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड, ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनको मैं वर्बली आपको आंसर कर रहा हूँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकली वहां पे आंसर करके दिखाऊंगा। ठीक है। सो आई रिकमेंड यू पीपल टू ज्वाइन दैट सेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अलाउ, गिव मी अ मोमेंट, मैं अभी कर देता हूँ आपके साथ इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कंप्लीट डिटेल्स है। इस फॉर्म हमारा जो जो आप जैसे ही आप उसको फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके उस सेशन में कि क्या होगा उसमें, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स क्या है। ठीक है। रादर आई एम शेयरिंग दिस कंप्लीट। ओके, आई जस्ट शेयर्ड इट, आई होप यू कैन फाइंड इट इन योर ग्रुप्स। मैंने आपके साथ ग्रुप्स में अभी शेयर किया है। इस रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक, जो गूगल फॉर्म है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड दिस। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरे पास होगा सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। I hope my screen is visible and you can see the workshop registration form, राइट। सो इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं कि एक 3 डेज का ये वर्कशॉप है, ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। डिज़ाइन किसके लिए हुआ है? BS MS MPhil एंड PhD स्कॉलर्स के लिए, टू टू उनके रिसर्च स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा, इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि कब होगा। 29 to 31 दिसंबर होगा। 3 PM to 5 PM होगा ये। बेसिकली मेरा ये ऑलरेडी टाइम डिसाइडेड था, बट इफ आई इफ यू पीपल वांट कि हम इसको रीस्केड्यूल करें तो वी कैन रीस्केड्यूल दैट एज वेल। ओके, इसकी फीस है ये 2000, जो मैंने आपको बताया कि 2000 इसकी फीस थी, बट वी वर ऑफरिंग अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफ 50% टिल 20 दिसंबर विच इज नाउ पास्ट। तो सिंस यू पीपल आर पार्ट ऑफ दिस सेशन, तो आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये जो है सेशन, ये सेशन आपके लिए 50% ऑफ पे है। एंड यू कैन जस्ट पे 999 एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन, बट अगेन दैट शुड हैपन बिफोर 25th। 25th क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। ठीक है। डेडलाइन से पहले पहले आपको इसको ज्वाइन करना है, रजिस्टर करना है, राइट। एंड देन यू कैन फाइंड कांटेक्ट मी ओवर हियर। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे हमारा चैनल है, फिर फेसबुक का चैनल है, इंस्टाग्राम का एंड लिंक्डइन का। These are basically the detailed plan के introduction to workshop, importance of literature review, types of literature review, narrative, scoping, systematic, meta analysis, ये टाइप्स होते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू कब करना होता है, किसका क्या पर्पस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों करना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर। तो दैट इज ऑल्सो अगेन विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स पर्टिकुलरली। फिर मैं आपको हर एक का एक एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि नैरेटिव रिव्यू कैसा दिखता है, कैसे लिखते हैं उसको, स्कोपिंग को कैसे लिखते हैं, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सिस्टमेटिक रिव्यू में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एंड देन मेटा एनालिसिस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, राइट। फिर उसके बाद वी विल बी फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग रिसर्चेबल टॉपिक, कि रिसर्चेबल टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता चले कि मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो आ, वाकई में उसके ऊपर रिसर्च हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देन वी हैव दिस रिसर्च डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चंस, के रिसर्च क्वेश्चंस कैसे डेवलप करें। दैट इज अगेन वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट। हमारे पास टॉपिक तो है, अब उसको क्वेश्चंस कैसे बनाएं। ठीक है, तो वो हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद डेटाबेसेस, डिफरेंट डेटाबेसेस जो होते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए या आर्टिकल्स को फाइंड करने के लिए, वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। और फिर सर्च स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए,
मेरा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर मैं किस तरीके से सर्च करूं तो मुझे रेलेवेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर्स यहाँ पे किया था, ठीक है, फॉर टीचर्स, तो ये एक कीवर्ड है एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। दिस इज वन ऑफ द session, right? Kind of fun of the way, एक सर्च स्ट्रेटजी ये है। अब इसके ऊपर देर आर अ लॉट ऑफ अदर सर्च स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू आप रिलेटेड रिलेटेड आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हो, तो वो आपको बताएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि कौन सा आर्टिकल मुझे अपनी लिटरेचर रिव्यू में ऐड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। दैट इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। हम उसके लिए क्राइटेरिया बताते हैं कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर ये आर्टिकल मैं ऐड करूंगी या करूंगा, और ये आर्टिकल ऐड नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो वो उस क्राइटेरिया को कैसे बनाना है वो हम आपको सिखाएंगे। फिर साइटेशन स्टाइल्स के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से टाइप्स के साइटेशन स्टाइल्स होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। फिर एपीए जो बेसिक यूजुअली यूज्ड होता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, एचईसी का रिकमेंडेड है, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका तरीका क्या है यूज़ करने का। फिर हार्वर्ड है, फिर शिकागो है, एमएलए है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे साइटेशन स्टाइल्स हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा कब किस फील्ड में कौन सा यूज़ होता है, ठीक हो गया, और किसको लिखने का तरीका क्या होता है, वहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। फिर मैनेजिंग रेफरेंसेस वाया मेंडले, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेंडले को यूज़ करके हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस को और आर्टिकल्स को। फिर हमारा लास्ट में होगा कि सिंथेसिस ऑफ रिजल्ट्स कैसे करें। जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की लिटरेचर पढ़ के, उस लिटरेचर को सिंथेसाइज कैसे करूं, लिखूं कैसे, किस वे में, किस स्ट्रक्चर में उसको मैं लिखूं। तो दीज आर बेसिकली आपके टेबल ऑफ कंटेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वर्कशॉप में, जो कि स्केड्यूल्ड है 29th to 31st December, राइट? सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर फॉर यू पीपल, राइट? तो इसको हम करेंगे। आप इसके अंदर रजिस्टर करें, पे जस्ट 99 एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दिस सेशन। एंड वी आई होप कि आपके बहुत हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि आई कैन सी कि आप लोग के इन क्वेश्चंस को ही देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आई नीड टू हैव दिस फ्री सेशन ताकि मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। यस। सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जिस तरह मैं भी मेंडले को यूज़ कर रही हूँ, तो जी। सर अगर मेरा टॉपिक है वैक्सीन प्रोडक्शन और मैंने काफ़ी ज़्यादा पेपर को कलेक्ट कर लिया, तो सर उन सारे पेपर, एक पेपर को जब हम पढ़ते हैं तो हम कैसे उन हर एक पेपर डेटा को हम कैसे एक जगह पे ऑर्गेनाइज वे में अरेंज कर सकते हैं ताकि लिटरेचर रिव्यू के बाद हमारे पास सारा डेटा एक जगह पे अरेंज हो। मतलब मेंडले पे मैंने सारे आर्टिकल्स को कलेक्ट कर लिया, अब मैं एक एक आर्टिकल को मैं पढ़ रही हूँ, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइज वे उसके है लिए भी ताकि सारा जो डेटा है वो एक यस तरीके यस से। यस यस यस, ये जो मैंने आपको लास्ट में सिंथेसिस वाला बताया, इसके अंदर वी हैव दिस स्ट्रेटजी ऑब्वियसली दैट विल बी शेयर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेशन। जो हमारा 3 days का वर्कशॉप है उसके अंदर मैं आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टूल दूंगा, जिस टूल के थ्रू आप उसको अपने आर्टिकल्स को सिंथेसाइज कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको पुट करके, एंड देन यू विल हैव एक ही जगह पे सारे आर्टिकल्स की सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो वी विल बी ओबियसली सिंथेसाइजिंग में जो पार्ट है उसके अंदर हमारा ये है कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे एक टूल, जिस टूल के थ्रू आप अ, इसको अपने सारे आर्टिकल्स को एक ही जगह पे क्या कर सकोगे, मैनेज कर सकोगे। लिखा हुआ है, वंस आपने कर लिया, और उस टूल के थ्रू जब आपने वो एक पर्टिकुलरली बना लिया तो उसके बाद उसी लिटरेचर रिव्यू से, उन्हीं आर्टिकल से आप मल्टीपल लिटरेचर रिव्यूज लिख सकते हो, राइट? तो वो भी आपको ऑब्वियसली मैं उस सेशन में बताऊंगा। सो आई रियली रियली रिकमेंड यू पीपल टू join that. Now coming back to this, हमारा जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है उसके ऊपर, राइट?
तो व्हाट डेटाबेसेस कैन स्टूडेंट एक्सेस फॉर लिटरेचर रिव्यू, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया. देन इज दिस वेबिनार जस्ट अबाउट लिटरेचर रिव्यू, व्हाट टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड और कवर्ड? ऑब्वियसली you people know okay what topics are being covered in here. This is only about question answers regarding literature review. Okay, what particular knowledge and skills can I learn from this webinar? Obviously you can learn, you will have basic information of what is literature review, and you will learn a lot of new information. Do you provide certificate for this particular webinar? We are not providing certificate obviously, but for that 3 days workshop we will be providing you certificate. Okay, will there be networking session? या नेटवर्किंग सेशन, आप लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग यू कैन डिस्कस, और फिर इफ़ यू फाइंड पीपल with same interest so they can collaborate with each other as well. So that's something that I have put a lot of different people into one group, and then if you people discuss with each other so you can have networking, right? How to start literature review from scratch? Yes, लिटरेचर रिव्यू स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें? लिटरेचर रिव्यू स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ टॉपिक इन योर माइंड. जनरल टॉपिक हो सकता है वो. फिर एज यू रीड द लिटरेचर रिव्यू तो फिर उसको आप स्पेसिफिकली कर सकते होते हो, ठीक है? तो आप एक ब्रॉडर टॉपिक अरेंज करोगे, फिर उस ब्रॉडर टॉपिक को पर्टिकुलर छोटा कर नेरो करेंगे, नेरो करते करते इतना करेंगे कि जो आप कर सकते हो. लाइक बिल्कुल नेरो भी नहीं करना कि वो फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ही खत्म हो जाए. तो इतना ब्रॉड रखना है उसको कि वो इम्पोर्टेंट रहे, एंड इतना नेरो करना है कि वो आप कर सको, राइट? एंड देन we have how to find relevant research papers for my topic. Obviously, that I have just said कि there are multiple resources. आप उनको एक्सेस कर सकते हो. रिसर्च स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है? कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हो. देन व्हाट आर द की स्टेप्स टू राइट एन इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू? की स्टेप्स क्या हैं लिटरेचर रिव्यू को लिखने के? तो मैं इन शॉर्ट आंसर इसको आंसर करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि आप ब्रॉड से नैरो तक जाते हो. जैसे किसी भी टॉपिक के आप ऊपर ओवरऑल जनरल इंफॉर्मेशन लिखोगे अराउंड द ग्लोब, फिर एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में, फिर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में भी हो सकता है, ठीक है? ये जो भी डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक, तो उसके लिए फिर आप नैरो करते जाते हो. सो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइटिंग इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू. फिर होता है हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर लिटरेचर रिव्यू. ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर के लिए आई होप आप लोगों को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इफ़ यू पीपल join that workshop so you will learn a lot of things to organize and structure your review. फिर है जी 21, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू? करेक्ट स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया कि ब्रॉड से नैरो करते हो, ठीक है? एक ब्रॉडन टाइप जनरल इंफॉर्मेशन देते हो, फिर स्पेसिफिक करते जाते हो चीज़ों को. तो दैट्स द वे टू स्ट्रक्चर योर लिटरेचर रिव्यू. हाउ शुड अ लिटरेचर रिव्यू बी रिटन इन अ थीसिस? थीसिस का जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो ज़्यादा होता है ऑब्वियसली. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का बैचलर्स का, मास्टर्स का और पीएचडी का थीसिस जो है वो ऑब्वियसली ओवरऑल जनरली डिफरेंट होता है. बीएस का छोटा होता है, एमएस का थोड़ा बड़ा होता है, और पीएचडी का काफ़ी बड़ा होता है. क्योंकि बीएस में आप जनरल रिसर्च कर रहे होते हो, इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती. मास्टर्स में कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, और पीएचडी में पर्टिकुलरली स्पेसिफिक होती है. एंड यू पीपल हैव टू हैव काइंड ऑफ in-depth information for your topic that you are studying, right? तो इसलिए फिर उनके डिफरेंट होते हैं. बट देन बैचलर्स के अगर हम बात करें तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. उस बेसिस के ऊपर कुछ ग्रुप बेस कराते हैं यूनिवर्सिटीज़, कुछ इंडिविजुअल करवाती हैं रिसर्च, और उसका फिर अगेन डिफरेंट क्राइटेरिया होता है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू बिलोंग टू.
ठीक हो गया जी। देन वी हैव हाउ टू राइट अ गुड लिटरेचर रिव्यू, वो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द मोर लिटरेचर यू राइट रीड, द मोर गुड मोर इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू यू कैन राइट। ठीक है जी। हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होता है कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में आप एक क्राइटेरिया बनाते हो, जो मैंने आपको एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया बताया, कि उस बेसिस के ऊपर आप आर्टिकल्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हो। देर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स दैट यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट, बट यू हैव टू हैव सर्टेन क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि मैं ये आर्टिकल ऐड करूंगा या करूंगी, और या ये आर्टिकल ऐड नहीं करना या नहीं नहीं करूंगी। ठीक हो गया। फिर हाउ मेनी आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू, यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से सानिया ने किया था। तो देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट यू कैन रीड, बट यू read as much articles as you can, so that you have better understanding of the subject, so that you can explain in a better way। ठीक हो गया। हाउ टू पुट रेफरेंसेस करेक्टली। करेक्टली रेफरेंसेस को पुट करने के डिफरेंट वेज होते हैं, मैंने आपको बताया कि देयर आर मल्टीपल स्टाइल्स। वो हम डिस्कस करेंगे हमारे वर्कशॉप में कि कौन सा स्टाइल कौन सी फील्ड में यूज़ होता है, और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या तरीका है रेफरेंस देने का, साइटेशन देने का और रेफरेंस देने का, तो वो हम इंशाल्लाह अपनी कमिंग वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। देन बेस्ट वे टू राइट इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। ओके, ये भी अगेन डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर। वी विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, मैं आपसे सजेशंस लूँगा, आप अपने जो भी रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो वो आप अपना इसके अंदर लिटरेचर, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, रादर फीमेल्स का अलग बना है, मेल का अलग बना है, तो आप अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर आप अपने टॉपिक्स लिखें। देन वी विल हैव अ पोल, एंड देन उस पोल के अकॉर्डिंग फिर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक के ऊपर हम इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिख सकते हैं, और हम क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्वियसली दैट विल बी एन एग्जांपल, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डिफरेंटली कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। कैन वी राइट अ सेपरेट लिटरेचर रिव्यू फॉर एवरी आर्टिकल? ऑब्वियसली वी हैव टू राइट सेपरेट लिटरेचर रिव्यू फॉर एवरी टॉपिक। ठीक है जी। एंड हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू इन उर्दू आर्टिकल्स एंड थीसिस? ऑब्वियसली उर्दू आर्टिकल्स में भी लिखने का तरीका तो सेम ही है, लिटरेचर रिव्यू सेम ही है, बट ऑब्वियसली देयर इज दिस लैंग्वेज डिफरेंस, और फिर आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ट्रांसलेशन की वो पूरी इसेंस नहीं आप कैच कर पाते हो ट्रांसलेशन में, राइट? तो यू विल हैव टू हैव उर्दू आर्टिकल्स विच इज more likely impossible, or maybe unlikely to access these articles। ठीक हो गया जी। तो उर्दू में आर्टिकल्स आपको नहीं अवेलेबल होते, दैट्स वाई वी लर्न इंग्लिश, दैट्स वाई वी यूज इंग्लिश, के इंग्लिश में हमारे पास जो लिटरेचर है वो ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए हम उर्दू में आर्टिकल्स कम यूज़ करते हैं या नहीं करते। ठीक है। व्हाट कॉमन मिस्टेक्स शुड बिगिनर्स अवॉइड इन लिटरेचर रिव्यू राइटिंग? लिटरेचर रिव्यू राइटिंग के लिए जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो हमारे बिगनर्स आजकल के स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि एआई को यूज़ करते हैं लिटरेचर राइट लिखने के लिए। एआई को यूज़ करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, और आपकी जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तो आपसे जब कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर, किसी, अगर आपने जर्नल को भेजा पेपर और उससे रिव्यूअर ने क्वेश्चन करके भेजा, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सको। तो वन बेसिक जो मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है, कि टाइम को सेव करने के लिए और जो है ना शॉर्टकट ढूंढते हैं हम, और शॉर्टकट से फिर हम एआई यूज़ करते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। तो दैट इज़ वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू। दूसरा, हम सीख के नहीं करते, तो ये दूसरी बड़ी मिस्टेक होती है कि हम लिटरेचर रिव्यू, हमने नाम सुन लिया तो हमें लगता है कि हम कर लेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, हमने आर्टिकल डाउनलोड करने पढ़ने, और फिर उन आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करके हमने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। तो ऐसे नहीं है, देयर इज अ वेरी सिस्टमेटिक वे टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू।
और सीख के करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, सीख के नहीं करेंगे तो फिर हमारा उतना इफेक्टिव नहीं होगा लिटरेचर रिव्यू। सो दीज आर टू कॉमन मिस्टेक्स दैट आई जस्ट कैन रिकॉल। और उसके बाद यस शहाना, यू हैव अगेन रेज्ड। सर सर लिटरेचर रिव्यू के लिए तो एआई का इस्तेमाल करना नहीं करना चाहिए, लेकिन सर अगर हम गैप फाइंड कर रहे हैं और अभी तक थीसिस नहीं लिख रहे, लेकिन जिस हम अपना गैप फाइंड करना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम तेज़ी से पेपर को पढ़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एआई का यूज़ कर सकते ताकि जल्दी से हमारा, ताकि हम सिर्फ ये देखें कि इस आर्टिकल क्या करक्स क्या है, इसमें क्या मेथड यूज़ हुआ है। लाइक मोस्टली मैं जो आजकल पेपर पढ़ रही हूँ वो ये कि इस आर्टिकल में कौन सा एंटीजन यूज़ हुआ है और उन्होंने उस एंटीजन को बनाने के लिए क्या तरीका यूज़ किया हुआ है। तो इसके लिए भी हम एआई का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, अच्छा, तो क्योंकि सर अंडरस्टैंड अगर दैट हम तेजी पर्टिकुलर से पढ़ते आर्टिकल। हैं ना, अब यस आपने यस अंडरस्टैंडिंग के लिए और हम्म, क्रक्स को निकालने के लिए, ताकि इस हम्म, पर्टिकुलर पेपर में क्या मेथड यूज़ हुआ है। बहुत हम्म, टाइम वेस्ट होता है कि आप जैसे आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो और सारे को पढ़ना चाह रहे हो, तो ये काफ़ी टाइम लेता है, तो इसलिए भी हम एआई को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ देखो, AI इज नॉट एज रिलायबल एज यू फाइंड इट। अब आपने मेरी सजेशन ये होती है स्टूडेंट्स को कि आप पूरे लिटरेचर एक आर्टिकल को पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आता, ठीक है, देन आप उसको AI से रेफर कर सकते हो, उससे क्रक्स ले सकते हो, उससे मेथड का पता। बिकॉज मेरे मेरे नज़दीक तो एक रिसर्च स्टूडेंट्स को आर्टिकल पढ़ने से ये पता चल जाना चाहिए, क्योंकि सीख के पढ़ना है ऑब्वियसली। मैंने आपको बताया कि हम सीख के नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं चलता कि मेथड क्या है, मेथड कैसे पता चले, क्रक्स कैसे पता चले। हमें ये भी नहीं पता होता कि एक आर्टिकल को पूरा पढ़ना है या उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है, ताकि जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं उसको गेन कर सकूं। तो हम सीख के नहीं करते मोस्टली ना। हम चाहते हैं कि हम अपने आप से करें या फिर हम AI का ही हेल्प लेते हैं। तो मेरे नज़दीक तो सीख के करना बेटर है, अदर देन रिलाइंग ऑन AI। क्योंकि AI आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं देता। AI वो इन्फॉर्मेशन देता है जो उसको पता होता है। और AI समटाइम्स आप उसको कहते कुछ हो, आपने सब AI यूज कर चुके होंगे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल हो गए हैं इसको आए हुए पाकिस्तान के अंदर चैट जीपीटी को, और सारे ही ऑलमोस्ट यूज करते होंगे। तो आपको अभी तक ये एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे कि AI से आप पूछते कुछ हो, वो जवाब कुछ देता है। शाना, आपने ये फेस किया है? जी सर, ऐसा ही होता है, बहुत बहुत बार लेकिन होता है, बहुत बार होता है ऐसा कि आप AI से पूछते कुछ हो और वो जवाब कुछ देता है। मतलब आप पूछ अलिफ रहे हो, जवाब बे मिल रहा है आपको। तो दैट्स द साइन दैट AI कैन नॉट बी रिलाइड ऑन, राइट। तो मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि सीख के करने से ये होता है कि आप खुद से जब करते हो ना, तो फिर ज़्यादा चीज़ें बेटर होती हैं। और उसको सही तरीके से, अगर आपने फॉर इंस्टेंस एक आर्टिकल दे दिया, उसमें मेथड कुछ यूज़ किया हुआ है और AI ने आपको बताया कुछ और मेथड, तो फिर तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी नहीं है। कोई भी आपसे अगर इन केस उस आर्टिकल का ऑथर आपकी प्रेजेंटेशन में बैठा हो और वो पूछ ले कि यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ किया है, आपने तो ये मेथड लिखा है, मैंने तो ये मेथड किया ही नहीं, तो फिर तो obviously ये मेरे साथ एक एक बार हुआ था। मैं अपना MS का थीसिस डिफेंस नहीं, प्रपोजल डिफेंस था मेरे ख्याल से। तो प्रपोजल डिफेंस के अंदर मैं जिस टॉपिक पे काम कर रहा था, उस टॉपिक पे ऑलरेडी किसी बंदे ने, जो मेरा एक्सटर्नल सुपरवाइजर था या एक्सटर्नल एग्जामिनर था, उसने काम किया हुआ था। और मेरे उसमें फील्ड क्या कहते हैं, डिफेंस के अंदर कुछ लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बैठे हुए थे। तो इंजीनियरिंग वाले बंदे मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके ऊपर, और वो दे वर नॉट गेटिंग व्हाट आई वांटेड टू से। तो उसके अंदर मेरा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर था, वो मुझे डिफेंड कर रहा था कि हाँ, इस तरह से रिसर्च होती है एंड इस तरह से हम करते हैं, मैंने भी इसके ऊपर रिसर्च की हुई है। सो दिस हैपेंस व्हेन यू हैव समवन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग ऑन योर टॉपिक। तो आपके टॉपिक के ऊपर अगर इन केस आपके पास डिफेंस में बंदा मिल जाता है जिसने ऑलरेडी काम किया हो, फिर तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा, और जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो फिर आपको नहीं आएगा या गलत क्वेश्चन आएगा, गलत आंसर आएगा, तो ओबियसली फिर आपकी वो जो है रिलायबिलिटी एज अ रिसर्चर क्वेश्चन हो जाती है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू पीपल टू लर्न बिफोर यू यू नो डू इट इंडिपेंडेंटली।
ठीक हो गया जी? Okay, suppose that in any reason we did not attend the lecture, so you will provide a recording or not? Yes, I will provide a recording. As you can see that this session is already being recorded. तो ये वाला सेशन भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आने वाले वर्कशॉप्स जो भी होंगे, जो मैं आपको जिस वर्कशॉप को रेफर कर रहा हूँ, उसके भी सारे तीनों सेशंस हम रिकॉर्ड करेंगे कि इन केस एनीबडी मिसेस आउट, किसी के पास इंटरनेट इशू आ गया, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो गई, वो नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, सो दैट्स के हम उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, एंड देन इन दैट केस हम उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। तो ये जो आपका ग्रुप है, ये ग्रुप परमानेंटली यहाँ पे है अनटिल अनलेस आप लीव नहीं करते हो। तो ये यहाँ पे ग्रुप है, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, एंड आई ट्राई टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक हो गया जी? Zachary says, कि, Sir, for example, I am making citation from two different papers. Paper one published in W category, and paper two published in Y category. Citing them, is there any impact of for my paper? Obviously, yes, your paper will be impacted. The more authentic and more valuable papers you cite in your paper, the more credible your paper becomes. So I hope you're getting it, Zakaria. Zakaria, uh, Abdur Rahman, Abdi Fatah. I'm sorry if I'm pronouncing it incorrectly. I'm really, really sorry. I would love if you can pronounce it by yourself so that we can avoid mistakes. But yes, the more reliable papers you use in your paper becomes more reliable. Clear? Then, is there any specific phrase that should be used to begin a literature review, or can it start directly with quotation? Additionally, how one should separate one quotation from another? Yes, that depends on citation styles. There are, as I said, there are multiple citation styles. There's Chicago, there's Harvard, there is APA, there is MLA. So there are multiple ways of citing a paper, and there are in citation, obviously there are two types. One is direct citation, the other is indirect citation. That इट इज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम टेंसेस में पढ़ के आए हैं बचपन में, या अर्ली आपके सेमेस्टर्स के अंदर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के आए हैं, तो वो सेम तरीका होता है कि समटाइम्स यू डायरेक्टली साइट द पर्टिकुलर पेपर, और समटाइम्स यू इनडायरेक्टली साइट द पर्टिकुलर पेपर। तो उसके अंदर फिर उसके डिफरेंट तरीके होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटेशन स्टाइल। आई होप हफ्सा इट इज क्लियर। ओके, कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, जो हमने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ओके, why do students fail in writing an effective literature review? Yes, again, फेल होने का यही तरीका है, यही रीजन है, वन ऑफ द रीजंस ये है कि हम सीख के नहीं करते। दूसरा, व्हाट मेक्स अ लिटरेचर रिव्यू इफेक्टिव? लिटरेचर रिव्यू को इफेक्टिव बनाती है द क्वालिटी पेपर्स दैट यू रीड एंड राइट अबाउट देम, वो चीज़, और जितने ज़्यादा आपके आर्टिकल्स उतना ज़्यादा आपका रिव्यू इफेक्टिव। ठीक हो गया? Then how can I improve my literature review skills with modern tools? Yes, ये मॉडर्न टूल्स के ऊपर मैं ओबियसली एक अलग से मेरा प्लान है कि हम एआई टूल्स हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च टूल्स विच आर बेस्ड ऑन एआई, जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर रिसर्च। उसके लिए हम एक अलग से पर्टिकुलर वर्कशॉप डेवलप करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। बट फॉर नाउ देर आर देर इज साई स्पेस, एक एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप जो कि रिलायबल है कंपैरेटिव टू चैट जीपीटी, उसको आप रिलाय कर सकते हो, और उसके अंदर आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स को स्टडी कर सकते हो और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे हम एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं
बट ये वाला जो चैट जीपीटी है या मेटा एआई है या जेमिनाई है, ये इतने रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये बेस पर्टिकुलरली रिसर्च सेंटर्ड नहीं है। वो साई स्पेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली रिसर्च सेंटर्ड है, तो वो उसका जो फोकस है वो रिसर्च है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दैट दैट इज़ वन टूल दैट यू कैन यूज़। ठीक हो गया जी। ओके, मॉडर्न टूल्स हो गया। अच्छा, हाउ टू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव लिटरेचर रिव्यू राइटिंग। लिटरेचर रिव्यू राइटिंग, ऑब्वियसली राइटिंग आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन राइट अ गुड रिव्यू, बट अगेन रीडिंग मोर पेपर्स विल improve your writing, and as you improve your writing you can write uh, good literature review। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें फिर उसको लिखें, तो आप की जो जो लिटरेचर रिव्यू राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। देन हाउ टू एनहेंस एडवांस्ड एकेडमिक वोकेबलरी फॉर रिसर्च राइटिंग। लिटरेचर रिव्यू से ही अगेन आपकी एडवांस एकेडमिक वोकेबलरी बन सकती है, क्योंकि जब आप कोई भी वर्ड पढ़ोगे तो वो नहीं आएगा आपको इन केस, तो आप उसकी मीनिंग देखोगे, फिर यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट वर्ड टू यू नो तो हमारी बेसिकली जो वोकेबलरी लर्निंग स्ट्रेटजीज है उनमें से एक ये होती है कि हम पर्टिकुलर वर्ड, जो भी हम नया वर्ड सीखते हैं, तो हम जितना ज़्यादा उस वर्ड को यूज़ करेंगे तो वो हमारी मेमोरी में बैठ जाएगा। वी विल इंटरनलाइज दैट वर्ड, और वो फिर अपरेंटली कंसिक्वेंटली उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो खुद ही हमसे प्रोड्यूस होता है सबकॉन्शियसली। तो वोकेबलरी को भी अगेन इम्प्रूव करने के लिए आपको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद है व्हाट चिल। अच्छा, आर्टिकल्स को पढ़, एक होता है आर्टिकल्स को पढ़ना, एक होता है आर्टिकल्स को समझने के लिए पढ़ना। तो अब समझने के लिए पढ़ना वो होता है जब आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं और उसको बार बार पढ़ रहे हैं, जब जब तक आपको वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते उसको। ठीक है, तो वो चीज़ आपको इम्प्रूव करेगी राइटिंग में भी और वोकेबलरी डेवलपमेंट में भी। ठीक है, व्हाट चैलेंजेस डू स्टूडेंट्स फेस इन लिटरेचर रिव्यू एंड हाउ कैन दे ओवरकम देम। तो अगेन ये एक चैलेंज जो शहाना ने बताया, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और बहुत सारे रिसर्चर्स जो बिगनर रिसर्चर्स होते हैं वो फेस करते हैं कि उनसे ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा होता, उनको पता नहीं होता है कि हम किसको कौन सा आर्टिकल पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें, फिर किस आर्टिकल्स में से क्या इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो एक चीज़ ऐसी है कि जिसको आप किसी मेंटोर के बगैर नहीं कर सकते, जा किसी टीचर के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता नहीं है और आपको बताने के लिए कोई चाहिए, दैट विल बी योर मेंटोर और सुपरवाइजर और टीचर। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में टीचर्स इतने बिजी होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं दे पाते, या फिर एक टीचर के पास इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो हर एक को पर्टिकुलर उतना टाइम नहीं देता, तो थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देता है, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मिस हो जाती हैं। एंड मिस हो जाने के कॉन्सिक्वेंसेस का ये होता है कि फिर हम चीज़ें प्रॉपरली सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दैट हैपेंस। तो इसके लिए आप अगेन I'm one of your solutions. I provide solutions for such people जिनको अटेंशन नहीं मिलती सुपरवाइजर से, तो वो आप आके हमारे सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट रिसर्च। ठीक है, हम डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन करें एंड यू विल बी अपडेटेड अबाउट आवर न्यू अपकमिंग सेशंस। और आई होप एवरीबडी हैज़ ऑलरेडी ज्वाइंड इट, तो वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे फॉर अपकमिंग वर्कशॉप्स एंड सेशंस। ठीक हो गया जी। और दूसरा है जी, हाउ टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम वाइल अरेंजिंग द लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। यस, ये शाहाना ने अगेन किया था। तो उसमें ये है कि उसके लिए एक प्रॉपर टूल होता है, वो टूल मैं आपके साथ इंशाल्लाह वर्कशॉप में शेयर करूंगा, जो हमारा है अपकमिंग वर्कशॉप
29 से 31 दिसंबर के वाला, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर इस चीज़ का आंसर दूंगा, और उसमें मैं आपको टूल भी प्रोवाइड करूंगा, और फिर मैं उस टूल को यूज़ कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है जी। सिस्टमेटिकली अरेंज लिटरेचर रिव्यू, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक टॉपिक आंसर कर दिया है इस चीज़ को। देन है हाउ टू एक्सेस पेड और नॉन ओपन एक्सेस जर्नल पेपर्स। तो वो मैंने आपको बताया, एक तरीका है साया हब यूज़ करें, दूसरा तरीका है आप उसको इंस्टीट्यूशन से एक्सेस करें, तो ये चीज़ हो सकती है आपकी। हाउ टू सिलेक्ट रेलेवेंट स्टडीज फॉर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को रेलेवेंट स्टडी, कोई भी लिटरेचर आर्टिकल को कैसे रेलेवेंट समझा जाए, उसके लिए ये बेसिकली आप जब टाइटल आपसे मैच हो रहा है, वन इंडिकेशन मैच हो गया, उसके बाद आप पढ़ोगे उसका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेजरली क्या चीज़ें होती है, इंट्रोडक्शन होता है, उस इंट्रोडक्शन में मोटा मोटा बताया जाता है कि ये ये रिसर्च पेपर किस चीज़ के बारे में है, इसमें रिसर्च पार्टिसिपेशंस या रिसर्च के अंदर जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च हुई है वो क्या है, कौन है। फिर उसके बाद होता है उसका मेथड, कि उसके अंदर मेथड कौन सा यूज हुआ है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, डिज़ाइन कौन सी है, वो चीज़ यूज होती है, वो पढ़नी होती है। और इसके अलावा उसके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर की फाइंडिंग्स होती हैं, जो की फाइंडिंग्स एंड मेथड्स, आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव, आपका मेथड और आपकी की फाइंडिंग्स, ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं। फाइंडिंग्स फाइंडिंग्स एंड पर्पस आप बेसिकली रेलेवेंस आपके साथ शो करेगा, एंड मेथडोलॉजी विल गिव यू इंडिकेशन कि आपको कौन सी मेथडोलॉजी चूज करनी चाहिए। ठीक है। तो पर्पस और फाइंडिंग्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको पढ़ के आपको पता चल सकता है कि ये मेरा पेपर मेरे टॉपिक से रेलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है। What criteria should be used to evaluate the quality and relevance of the source? रेलेवेंस को मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जितना ज़्यादा कैटेगरी, मतलब मैंने एक्स वाई मैंने आपको बताई हैं कैटेगरीज। एक्स जो है वो मीडियम होती है, वाई जो है वो लोअर होती है, एंड डब्ल्यू जो है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है जी। तो उससे फिर आपको एक तो वो चीज़ है, जितनी क्वालिटी का पेपर होगा वो उस अच्छी कैटेगरी में अप्रूव पब्लिश हुआ होगा। ठीक है। वो फिर आपको कैसे पता चले कि मेरा पेपर अच्छी क्वालिटी में पब्लिश हुआ हुआ है, जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो वो आपको पता चल सकता है बाय लुकिंग दैट पर्टिकुलर जर्नल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एजुकेशनल जर्नल ऑफ रिव्यू, और जो भी था ये वाला, क्या था नाम इसका, एजुकेशनल रिसर्च रिव्यू। यस, एजुकेशनल रिसर्च रिव्यू को आप, ये वाला नेम, HEC की वेबसाइट पे जाके जर्नल एक्रेडिटेशन में सर्च करके पता कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है जर्नल। ठीक हो गया जी। फिर है हाउ टू हाईलाइट स्पेसिफिक ऑथर्स, theories और डेटा विदाउट इंक्रीजिंग प्लेजरिज्म। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेजरिज्म भी अवॉइड हो जाए, और हम उसको ऑथर के बारे में या जो पर्टिकुलर वर्क है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम यूजुअली इनडायरेक्ट कोटेशन यूज करते हैं, और वो वर्ड्स यूज ना करें जो ऑलरेडी उस ऑथर ने यूज किए हैं, रादर हम उससे उसके सिनोनिम्स यूज करें। ठीक है। या उसको रीफ्रेज करके लिखें। रीफ्रेज और पैराफ्रेज आपको पता होगा कि रीफ्रेज इज के उसी सेंटेंस के डिफरेंट वर्जन्स बना के लिखना। ठीक है। और पैराफ्रेज का मतलब होता है उसी सेंटेंस को अपने अल्फाज में लिखना। ठीक है जी। तो these are two ways that you can use to avoid plagiarism. फिर है how to critically analyze and synthesize studies instead of summarizing them. हाँ, क्रिटिकली एनालाइज और सिंथेसाइज करने के लिए आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एक होता है समरी उसकी देना, दैट्स दैट्स समथिंग डिफरेंट, कि आपने ये पढ़ा और उसको शॉर्ट करके बताया। एक होता है कि आपको उससे अंडरस्टैंडिंग क्या हासिल हुई, उसके बेसिस पे आप क्या जो है ना अपना अजम्पशन बना रहे हैं।
ठीक है, वो होती है एक्चुअली सिंथेसिस। ठीक हो गया। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स जिसके बेसिस पे आप जो है वो समराइजिंग और एनालाइज और सिंथेसाइज में ये डिफरेंस होता है। ठीक है जी। ओके, और इसके अलावा की एस्पेक्ट्स दैट हेल्प डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग while रिव्यूइंग लिटरेचर रिव्यू, more and more questions. Question everything you read in the paper and it will increase your critical thinking. ठीक है, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस उतनी क्रिटिकल आपका रिव्यू। कोई भी आर्टिकल में जब लिखा हो, कोई मेथड यूज किया है, तो आप देखें उसके अंदर मेंशन होगा कि ये क्यों आर्टिकल किस इसने ये मेथड क्यों यूज किया है। तो आप उससे पूछो, पूछो जाहिर है पूछ तो नहीं सकते, तो उसमें उसको दोबारा पढ़ो कि यू विल गेट द हिंट कि इसने ये मेथड क्यों यूज किया है। ठीक है जी। तो कोई मेथड यूज किया है तो क्यों किया है, कोई वेरिएबल यूज किया है तो क्यों किया है, किसी वेरिएबल को मैनिपुलेट किया है तो क्यों किया है। तो द मोर क्वेश्चंस यू आस्क, द मोर क्रिटिकल यू बिकम अबाउट द रिव्यू, राइट। तो दैट्स द की एस्पेक्ट, आस्किंग मोर क्वेश्चंस विल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक हो गया जी। देन वी हैव व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट रिड्यूस ओरिजिनलिटी इन द लिटरेचर रिव्यू। हाँ, हम यूजुअली कॉपी पेस्ट करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट आवर स्टूडेंट्स डू, और that our students commit, which consequently reduces the originality of your work because you copy paste directly from the पेपर दैट यू आर राइटिंग। ठीक है जी। जो भी पेपर आप पढ़ रहे हो तो बेसिकली आपको उसकी फाइंडिंग्स ही मेंशन करनी होती हैं कि ये इसने ये जो है ना फाइंडिंग्स, इसने ये रिसर्च की और इस रिसर्च के अंदर ये उसकी फाइंडिंग्स थी। ठीक है, मोस्टली आप डायरेक्टली नहीं बताते कि उसमें क्या रिसर्च की थी, बस आप बताते हो कि ये इस बंदे ने इस बंदे के अकॉर्डिंग ये इसका मतलब ये है, यानी उसके रिजल्ट्स को बेसिस के ऊपर आप उसकी कोई स्टेटमेंट लिखते हो। तो जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखते हो अपने वर्ड्स में तो वो ओरिजिनलिटी को इंक्रीज करती है, और जब कॉपी पेस्ट करते हो एज इट इज तो वो रिड्यूस कर देती है ओरिजिनलिटी, एंड देन ऑब्वियसली दैट इंक्रीजेस द प्लेजरिज्म। How to identify foundational studies versus less relevant studies. Again, purpose and finding. पर्पस एंड फाइंडिंग रेलेवेंस आपकी शो करता है। जितना ज़्यादा पर्पस आपकी स्टडीज, आपका जो अपना पर्पस है वो सिंक करेगा जिस भी स्टडी से, वो ज़्यादा वो फाउंडेशनल स्टडी होगी। और जितना वो अवे होगा, डिफरेंट होगा, वो इररेलेवेंट होता जाएगा या लेस रेलेवेंट होता जाएगा। Then we have this how to identify genuine research gap instead of repeating existing work. Yes, that's one of the biggest, greatest questions so far. कि gap कैसे find करें instead of doing same research. तो there are multiple gaps in literature review. ये रिसर्च के गैप्स के टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है गैप बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, gap based in knowledge, gap based on method, gap based on demographics. तो there are multiple other types। ठीक है, तो इन सब टाइप्स के बेसिस के ऊपर आप जो है वो गैप फाइंड कर सकते हो, एंड दैट अगेन आई विल गिव यू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ दैट इन आवर कमिंग वर्कशॉप। ठीक है, हाउ टू नैरो डाउन अ ब्रॉड टॉपिक इनटू अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन, दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट सेशन, एंड इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग दिस क्वेश्चन आंसर्ड। ठीक हो गया जी। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर करंट ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन रिसर्च, दैट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट फील्ड्स। आप रिसर्च ट्रेंड्स मल्टीपल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को की वेबसाइट को और रिसर्च प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स को देख करके आप देख सकते हो कि आपकी फील्ड में कौन से रिसर्चर्स इमर्जिंग हैं और वो क्या रिसर्च करा रहे हैं। ठीक है, so that's pretty much about today's question answer sessions. I hope you people have learned
something in this session, if or how to read paper fastly but effectively without using AI. शाहाना, इंशाल्लाह इसके ऊपर ना हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सिंस वी हैव पास्ट, लाइक हमारा प्लान था कि हम इसको 1.5 घंटे का रखेंगे और हमारे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो रहे हैं, and my friends are waiting outside for me to go for dinner. So I'm probably I'll not be able to answer this question. But if you have any other questions, तो आप ग्रुप में लिखें और मैं वहाँ पे आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ। बट शाना, आपको तो मैं बहुत रिकमेंड करूँगा, यानी स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा सेशन ज्वाइन करें। एंड एवरीबडी ओवर हेयर जिनके क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, वो हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इट इज़ मिनिमल फीस, ओबियसली 999 इज़ वेरी, बिल्कुल मिनिमल है, बिल्कुल मिनिमल है। वहाँ पे आपको बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। आपने कंटेंट देख लिया है, आप दोबारा से अपने आप नो खुद ही जा करके इसको फॉर्म को देखें, पढ़ें कि क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी प्रोवाइडेड है एंड हाउ दैट कुड बी रेलेवेंट टू यू। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ें, एंड इफ़ यू genuinely want to improve your literature review, तो वो workshop is one of the best solutions for your questions. Clear? So that's all from my side. I hope I have tried to answer your questions comprehensively. So I'll stop sharing my screen here. So I hope things are clear to everybody. Just give me a yes and we are good to go. Yes. Yes, Subhay Sab, you want to say something? Thank you, sir. Very, very informative session, sir. Hope to see you in the next session. Inshallah, inshallah, Subhay Sab, we certainly will be there, inshallah. Thank you so much. Yep. Yep. All Thank you, right, sir. guys and girls, that's all from my side. Thank you so much, and I'm sure that you people will join our paid session. That's just 999, and the kind of information that you will receive in that session is very, very huge and very, very important for you people. Inshallah, inshallah, you will learn a lot of new things and you will have a lot of questions answered जो अभी रह गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह ऑन 29th। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।